Hello everyone, I'm Kishan Jaiswal, Assistant Professor of Shreyas Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today we are going to start a new chapter, Applications of Computers in Pharmacy. It is very important since in this we are going to learn what is the use of computers in our pharmacy field. So let's start. First we will see the use of drug information storage and retrieval. Means with the help of computer we can store the information of drug, and whenever we need that information we can retrieve that information. It is faster than manual search. For example, suppose मैंने आपको एक वर्ड सर्च करने के लिए दिया है नोटबुक में, सो इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू कंप्यूटर. कंप्यूटर में हमें क्या करना है, जाना है, कंट्रोल F प्रेस करना है और जो भी वर्ड है वो आप सर्च करोगे तो इजीली वो मिल जाएगा. नेक्स्ट, अगर आपके पास इंटरनेट हो, सो आप वो इंफॉर्मेशन, ड्रग इंफॉर्मेशन कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में आप उसे शेयर कर सकते हो. नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस ऑफ कंप्यूटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस, दैट इज प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज का एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंडरी का है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. प्राइमरी स्टोरेज वोलाटाइल होती है, मीन्स अगर पावर सप्लाई ना हो तो जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो वो इंफॉर्मेशन इरेज हो जाएगी, मीन्स नॉट परमानेंट मेमोरी है. जबकि सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क वो परमानेंट मेमोरी है. जब भी आप कोई डेटा टाइप करते हो तो इट इज़ इन प्राइमरी स्टोरेज, बट जब आप उसे सेव करते हो देन इट इज़ ट्रांसफर टू सेकेंडरी स्टोरेज. अभी जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ स्टोरेज देखा है, वैसे टाइप्स ऑफ रिट्राइवल्स भी है. फर्स्ट उसमें से है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. मतलब कोई भी एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर का जो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, सो यू कैन नो द हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर इन हॉस्पिटल एंड हाउ मेनी बेड्स आर empty. Like this you can know the status of billing of patient. Now next is CD-ROM information retrieval. The full form of CD is compact disc. इसमें भी एक इंफॉर्मेशन होती है, बट वो इंफॉर्मेशन हम इरेज कर नहीं सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते. उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखेगी. नेक्स्ट है ओपैक. ओपैक का फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग. मीन्स आपको ऑनलाइन कोई भी सर्च करना है बुक के बारे में या कोई ड्रग के बारे में तो आप ओपैक को रेफर कर सकते हो. नेक्स्ट है वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. वेब यानी वी आर गोइंग टू यूज इंटरनेट. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन take information of any drug, any related drug, and you can search it. Internet can be used by anyone, anywhere, and anytime. So we have four types of information retrieval. First is online information retrieval, then CD-ROM information retrieval, then opaque, and last one is web information retrieval. Now our next topic is about pharmacokinetics. It is mainly defined as what body does to drugs. It is mainly focused on the movement of drugs. उसके स्टडी 4 कैटेगरीज में, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया है एडमी. एडमी मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो आपने मेडिसिन एब्जॉर्ब कैसे की है. फॉर एग्जांपल ओरली, मतलब आपने खा लिया है या आपको इंजेक्शन दिया गया है. और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि वो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होगा. मेटाबॉलिज्म में it refers to breakdown and give desired actions, and in excretion what happens, it is excreted by kidney, sweat, tears, etc. This is all about pharmacokinetics. Now how computer is useful in pharmacokinetics, let us see. There is a diagram how pharmacokinetics works. The principle of ADME, that is absorption, distribution, metabolism, and last one is excretion, that is elimination of the drugs. So it is difficult to carry out mathematical evolutions in pharmacokinetics because of biological processes are very complex. Now in this computers can solve
that complex calculations. So computers are used for pharmacokinetics. Let's move to next topic. Next important topic is mathematical model of drug design. Now, what is drug design? Drug design is innovative process finding of new medication. Drug design is not necessary but mostly relies on computer modeling, और वो modeling को हम क्या बोलते हैं, computer aided drug design. In this what happens, computer approach to discover, develop and analyze drugs. Okay, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हमें कोई नवा ड्रग बनाना है तो उसमें हमें कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा मनी प्लस हमारा टाइम भी है जो बचेगा, और इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट न्यू ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ओके, नाउ यू कैन सी द इमेजेस हाउ कंप्यूटर इज़ यूजफुल. जैसे कि हमें स्टडी करना है RNA DNA के बारे में, सो इट इज़ वेरी इजी to read with the help of computer. We can gather information with the help of internet and we can also share that information. You can see here how computers is used for drug design, like virtual screening. हम देख सकते हैं RNA DNA को, जैसे कि एक इमेज दिख रहा है आपको. Compound design, different types of complex calculations, energy calculations. नेक्स्ट SAR एनालिसिस यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एनालिसिस. नेक्स्ट है एडमी मॉडल. एडमी मॉडल हम किस में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले देखा है फार्माकोकाइनेटिक्स में, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. लास्ट वन इज ड्रग टारगेट इंटरेक्शन. दिस ऑल थिंग्स वी कैन get easily with the help of computer. Next is the most important application of computer in hospital and clinical pharmacy. मतलब आपको हॉस्पिटल में और क्लिनिकल फार्मेसी में मेनली कंप्यूटर कैसे यूज़फुल है. फर्स्ट, आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स, ड्रग्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो. आपको जो मिनिमम ऑर्डर्स आ रहे आपके ड्रग्स के लिए, उसकी आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट है, आपको जो ड्रग्स परचेस ही नहीं हो रहे, सेल ही नहीं हो रहे, उसको आप रिटर्न कर सकते हो. एक्सपायरी जो मेडिसिन है उसको डिस्कार्ड कर सकते हो. एक समरी सेल्स की, मतलब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आप निकाल सकते हो. लास्ट वन इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हो. मीन्स कंप्यूटर में आपको फार्मेसी में देखने को मिलेगा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर आपका कोई स्टॉक ख़त्म हो रहा है कोई ड्रग का, तो ऑटोमेटिकली वो अलार्म देगा आपको. प्लस कोई ड्रग सपोज एक्सपायरी हो रहा है तब भी वो अलार्म देगा. तो इजीली आप उसे फाइंड कर सकते हो और पॉसिबली रिटर्न भी कर सकते हो. यहाँ तक कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके ये मंथ में, ये वीक में सेल्स कितनी हुई है, कौन से मेडिसिन के सेल्स ज़्यादा हुई है, उसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हो. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग. मीन्स इंस्टेड ऑफ पेपर एंड पेन वी आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर प्रिस्क्राइबिंग. इससे क्या होगा, इट इज़ एरर फ्री, कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं होगा. मेन ड्रॉबैक का क्या होता है पेपर पेंसिल का, कि समटाइम्स व्हाट हैपन, डॉक्टर हैंडराइटिंग इज़ नॉट टू गुड, देन इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड. उसकी जगह अगर हम कंप्यूटर बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग करेंगे तो इट इज़ एरर फ्री एंड एक्यूरेट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज सिस्टम. मीन्स जब भी सपोज पेशेंट हेल्दी हो गया है और हम उसे डिस्चार्ज दे रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हाउ वी कैन डिस्चार्ज इट. इधर भी हम पेन पेपर की जगह कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और वो फास्ट है और मोर एक्यूरेट है. देर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर, अटेंडेंट एंड पेशेंट. टाइम भी बचेगा और एरर्स भी नहीं होंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेड ऑक्यूपेंसी स्टेटस भी चेंज हो जाएगा.
द लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपका इंश्योरेंस है सो यू कैन रीएम्बर्स फास्टली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब आप क्लेम कर सकते हो आपके पैसों के लिए, आपके बिल्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने एक इमेज दी है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन इजी वे है। नेक्स्ट टॉपिक इज बारकोड मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन। बारकोड क्या होता है, बारकोड में रीडेबल डेटा अपन रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल मशीन और स्कैनर। मतलब बारकोड क्या होता है, एक स्टिगर टाइप होता है, उसे ड्रग को अगर हम लगा देते हैं, यूनिक बारकोड हर ड्रग को रहता है, सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बिलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एंड फास्टर है प्लस एरर फ्री है। एग्जाम्पल देखिए बारकोड का, दिस टाइप ऑफ इमेज इज देयर इन बारकोड। अगर आप मॉल वगैरह गए हो तो वहाँ पर भी आप जब बिलिंग प्रोसेस करते हो तो वो स्कैन बारकोड स्कैन करते हैं और इजीली फास्टली और विदाउट एनी एरर बिलिंग प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग। इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर की मदद से आपको डिस्पेंस करते आएगा, प्रिस्क्रिप्शन देते आएगा और मेडिसिन भी देते आएगा। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग का बिगेस्ट बेनिफिट क्या है कि ये फास्टर सर्विस है, फास्टर बिल आपको प्रोवाइड कर सकती है, एरर्स आपको कम हो गए और सिक्योर है। मतलब वो ऑटोमेटिक लॉक्ड ही रहता है, जिसके पास इसकी परमिशन है बस वही उसे खोल सकता है। मतलब चोरी होने का भी डर नहीं रहता है ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग में। एक एग्जांपल है SP200 रोबोटिक प्रिस्क्रिप्शन। इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि 1 आवर में वो 100 प्रिस्क्रिप्शंस कर सकता है। मतलब सिर्फ 1 घंटे में वो 100 प्रिस्क्रिप्शंस को मेडिसिन दे सकता है। ओके, नेक्स्ट आप इमेज देख सकते हो कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैसे हो सकती है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, मीन्स यहाँ पर आपको ड्रग टाइप करना है और ऑटोमेटिकली वो जो भी इसमें ड्रग रहेगा वो खुल जाएगा और उसमें से आपको ड्रग निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल टेक्नोलॉजी। जैसे कि मोबाइल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर। विच कंप्यूटर? इट इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मोबाइल में क्या कर सकते हैं हम, मोबाइल में हम अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, प्लस किसी प्रकार की एडवाइस आपको लेनी है डॉक्टर की, सो वी कैन टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। यू कैन ऑल्सो बुक अपॉइंटमेंट टू डॉक्टर, you can receive messages from doctor। मेन एडवांटेज मोबाइल का क्या है, वो स्मॉल है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है और वेरी इजी टू यूज है और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो वी कैन यूज मोबाइल। some applications are there in that you can check your blood pressure, heart rate with the help of mobile. Here you can see the example how we can check our blood pressure with the help of mobile. Our next topic is adherence monitoring. What is adherence monitoring? In adherence monitoring, we are going to monitor the patient, how much he is improving, how much his health is improving, or is there is any side effects in that. So it is called adherence monitoring. Poor adherence to prescribed patients can result in serious health consequences. Adherence monitoring involves two activities, mainly tracking doses and monitoring side effects. उसमें क्या होगा कि पेशेंट आपका इम्प्रूव हो रहा है या उसे उस मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसकी हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। This systems of adherence focus on 5 rights: right patient, right medicine, right dose, right time, and right route of administration. See the example. In this,
there are different four examples we have. Like first one is स्मार्ट पिल बॉटल्स. मतलब ये इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक जब आपका टाइम होता है डोज लेने का, उसे एक बार सेट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो अलार्म देता है कि आपका डोज का टाइम हो गया है. मोबाइल ऐप से. Nowadays there is technology of pill sensors. मीन्स इसमें क्या होता है कि जब आप गोली खाते हो, गोली खाने के बाद आपको डॉक्टर को पता लगता है कि आपने किस टाइम पर खाया और आपने कितने पिल्स खाए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोस्टिक सिस्टम. डायग्नोस्टिक सिस्टम मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट द पेशेंट हैव द डिसीज. पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को क्या हेल्थ इशू है, उसे फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक सिस्टम. कंप्यूटर उसमें कहाँ कहाँ यूज़ आता है, जैसे कि आप डायग्नोस करने के लिए एक्सरे मशीन यूज़ करते हो, एमआरआई मशीन यूज़ करते हो. इन दैट all the machines computer is used the most. Nowadays computer can also be used for complex surgeries. See the example of MRI machine. With the help of these machines we can see without operating the body, we can see inside. एग्जाम्पल आप देख रहे हो इमेजेस ये वाले. नेक्स्ट टॉपिक इज patient monitoring system. It is mainly for the patient who is admitted in hospital. पेशेंट मॉनिटरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स लगाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ईसीजी, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ह्यूमन ब्लड, शुगर लेवल, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा. इट इज वेरी easy to find the disease, also treatment of disease with the help of computer. Computers can give warning alerts to nurse when required by the patient. For example, if there is too much blood pressure, then automatically the sensor is on and it can call to patient. See the image here, there are different types of sensors. अगर आपके हार्ट बीट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कुछ अनयूजुअल थिंग दिख रही है तो ऑटोमेटिकली नर्स को पता लग जाएगा और नर्स आपको देखने के लिए आ जाएगी. Thank you. Go through every point, check it. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.